I am Neha Migrani. Today I am going to cover the topic of demand forecasting part 2. I have already given the one video about the demand forecasting part 1, in which I have already discussed what is the meaning of the demand forecasting, what are the types of the demand forecasting, means what are the methods of demand forecasting. In this video we have already discussed that there are two methods of demand forecasting. First one is the opinion polling method, which is also called qualitative methods, and second method is our statistical method, in which we use mathematical formula to cover the demand forecasting, estimate the demand forecasting. In my next video, this video, I'm just going to complete the opinion polling methods which I have left in my previous video. So let's start our topic. Starting my videos, I just want to say that just get enrolled yourself in the Diwakar Education Hub, and you can get most reliable data for your net preparation on the topics or on the subjects on commerce, management, education, HRM, economics, English, home science, law, psychology, environmental science, computer application, library science, political science, sociology, philosophy, physical education. And you can also get the sample PDFs from the Diwakar Education Hub. And for any query, you can call on the number which are given on the screen. Before giving the view about the opinion polling method, we will again discuss what is the demand forecasting. Demand forecasting is a systematic process. Demand forecasting एक systematic process होता है जो इन्वॉल्व करती है कि फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट की या सर्विसेज की डिमांड कैसी हो सकती है. हम इसमें हमारे जो प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से हम फ्यूचर में डिमांड को एस्टिमेट करते हैं, ताकि हम पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड हो जाएं और हमारी प्लानिंग उस हिसाब से हो, ताकि हमारे जो डिमांड जितनी आ रही है उतनी हम सप्लाई को क्रिएट कर सकें. सो दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर द फर्म टू अनेबल इट टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड क्वांटिटी एट द राइट टाइम एंड अरेंज वेल इन एडवांस फॉर द वेरियस इनपुट्स. डिमांड फोरकास्टिंग बहुत इसलिए ज़रूरी होता है ताकि ये फर्म्स को पहले से ही प्रिपेयर्ड या अनेबल करें, ताकि वो जितनी भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी ज़रूरी होती है डिमांड में, तो उतना वो एक्यूरेट राइट टाइम पे प्रोड्यूस कर सके और अरेंज वेल इन एडवांस फॉर वेरियस इनपुट्स, और पहले से ही प्रिपेयर्ड हो जाए कि उनको कितना रॉ मटेरियल आगे के लिए प्रोसीड करना है. So there are two types of methods of demand forecasting. First one is opinion polling method and second is the statistical method. In opinion polling method, there are three types of method. In statistical method, there are four types of method. Before discussing this type of method, first we are going to understand what is the opinion polling method. Opinion polling method, as per the name suggests, opinion means suggestion लेना, polling method with the vote. ठीक है, हम लोगों से सजेशंस लेते हैं. वो लोग कुछ भी हो सकते हैं, आपके कंज्यूमर हो सकते हैं, आपके सेल्स पर्सन हो सकते हैं, आप किसी एक्सपर्ट से एडवाइस ले सकते हैं, तो वो बहुत सारे हो सकते हैं. ठीक है. स्टैटिस्टिकल मेथड एक वैसे मेथड्स होते हैं जिसमें आप फॉर्मूलाज अप्लाई करके अपने जो है प्रीवियस और हमारी जो प्रीवियस और पास्ट जो डिमांड रह चुकी है उनको आप यूज़ करके आप अपने फ्यूचर की डिमांड को फॉरकास्ट कर सकते हो. सो ओपिनियन पोलिंग मेथड में कल हमने जो हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की है कि जो ओपिनियन पोलिंग मेथड है वो 3 टाइप्स के थे: कंज्यूमर सर्वे मेथड, सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड, एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड. And consumer survey method is further classified into 3 types: complete enumeration method, sample survey and test marketing method, and end use method. Consumer survey method stand for that type of method in which opinion should be taken from the direct to the consumer, but this type of method is for the very short period. ठीक है, इसे हम जो अपने प्रेजेंट जो हमारे प्रोडक्ट की जो है
हमारे जो प्रेजेंट जो हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है उसको हम कंज्यूमर के थ्रू एडवाइस लेते हैं कि उनकी जो है वो फीडबैक कैसा दे रहे हैं। अगर वो फीडबैक अच्छा देंगे तो इट मीन्स हमारा जो प्रोडक्ट आगे अच्छे से चलेगा। अगर फीडबैक नहीं दे रहे हैं सही ढंग से तो वो मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से नहीं वर्क करेगा। ठीक है, तो जो कंज्यूमर ओपिनियन मेथड होता है वो 2 पार्ट्स में आगे फर्दर क्लासिफाइड होता है। एक होता है कंप्लीट इनैमरेशन मेथड, दूसरा सैम्पल सर्वे एंड टेस्ट मार्केटिंग मेथड, एंड थर्ड वन इज एंड यूज मेथड. End use method is also called the marketing test method. So complete enumeration method in which we consider the whole of the aggregate of the consumer. हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो हमारे प्रोडक्ट की है, जो हमारे प्रोडक्ट की जितने लोग हमारी डिमांड करते हैं उन सभी कंज्यूमर से हम अपना सैंपल लेते हैं. सैंपल सर्वे एंड टेस्ट मार्केटिंग मेथड, इस मेथड में हम क्या होते हैं, हम पूरी के पूरे कंज्यूमर को नहीं लेके चलते हैं, हम उनमें से कुछ लिमिटेड पर्सनस को ले लेते हैं, लिमिटेड कंज्यूमर्स को, और उनका सैंपल के उनका सर्वे हम लेते हैं हमारे प्रोडक्ट का. अगर वो और उन्हीं के दिए हुए फीडबैक के थ्रू हम बाकियों की फीडबैक की भी जजमेंट ले लेते हैं. इसके बाद एंड यूज़ मेथड होता है. एंड यूज़ मेथड का मतलब क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका एंड यूज़ क्या है. ज़रूरी नहीं आपका प्रोडक्ट डायरेक्ट कंज्यूम करने के लिए यूज़ किया जाता है. आपका जो प्रोडक्ट शायद ये हो सकता है जो प्रोडक्ट हो वो, उस एग्ज़ाम्पल ली है मिल्क की. मिल्क का एंड यूज़ जो है वो मिल्क नहीं है, उसके थ्रू हम कर्ड बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, बटर मिल्क बनाते हैं, लस्सी बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं. तो वो एंड यूज़ कितना है, एंड यूज़ ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी ज़्यादा हो सकती है. सो आगे हमने सेकंड मेथड में डिस्कस किया था सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड. सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड में क्या होता है कि हम किसका ओपिनियन लेके चलते हैं, हमारे सेल्स फोर्स का. जो हमारे प्रोडक्ट के लिए हमने जितनी सेल्स फोर्स इन्वॉल्व की हुई है उसको हम उनका ओपिनियन लेंगे कि मार्केट में उनके प्रोडक्ट का जो रिस्पॉन्स है वो कैसा है. ये भी एक बहुत अच्छा मेथड होता है. इसमें एक बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि आपका कॉस्ट और टाइम जो है वो आपका जो है वो ज़्यादा नहीं पड़ती है, वो कम ही रहती है. ठीक है, अगर कॉस्ट एंड जो बट इसमें एक ड्रॉबैक ये आ जाता है कि आपके ज़रूरी नहीं आपके जो सेल्स फोर्स है वो आपको सही एक्यूरेट डाटा दे, क्योंकि उनको अपनी जॉब का खतरा होता है. कई बार क्या होता है आपके प्रोडक्ट के बारे में वो कुछ नेगेटिविटी बता दें तो ऑब्वियसली कई बार उनको अपने जॉब का खतरा रह जाता है. सो नेक्स्ट हमारा जो मेथड है डेल्फी मेथड, जिसको हम एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड भी कहते हैं, जो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे. एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड में क्या होता है कि यू विल टेक द ओपिनियन ऑफ द ग्रुप ऑफ द एक्सपर्ट्स. आप अपने जो भी आपके जो मार्केट के एक्सपर्ट्स होते हैं आप उनसे ओपिनियन लेते हैं. ना ही आपके वो कंज्यूमर होंगे, ना ही वो आपके एम्प्लॉयज़ होंगे. आप बाहर के बंदे से या बाहर के ग्रुप ऑफ पीपल से आप जो है ओपिनियन लेते हो. ठीक है, कि आपके प्रोडक्ट का ओपिनियन लिया जाता है क्योंकि उनको मार्केट के बारे में पूरी नॉलेज होती है. आप ओपिनियन कैसे ले सकते हो, थ्रू द मेल. किसके थ्रू ले सकते हो आप, थ्रू मेल. ठीक है, द आइडेंटिफाई द एक्सपर्ट इज कीप्ड सीक्रेट. बट ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि आपकी जो आइडेंटिटी होती है ना एक्सपर्ट की, कौन सा आप एक्सपर्ट यूज़ करें, उनके जो कॉन्फिडेंशियल्स होते हैं उनको आप सीक्रेट रखोगे. ठीक है, तो ये भी एक तरीके से प्रोसेस होता है, बहुत सारे स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं जब आप एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड को यूज़ करके चलते हो. एक और चीज़ इसमें ये चीज़ होती है, आप एक एक्सपर्ट की राय दूसरे एक्सपर्ट के साथ शेयर नहीं करोगे, और एक एक्सपर्ट को नहीं पता होना चाहिए आप दूसरा एक्सपर्ट कौन सा लेके चल रहे हो. ठीक है, सो ये भी एक बहुत बेटर वे होता है. एडवांटेज इसमें क्या होता है कि आपका जो फॉरकास्ट होगा वो मोस्ट रिलायबल डाटा आपको मिलेगा. ठीक है, क्योंकि आप एक्सपर्ट से राय ले रहे हो, एक्सपर्ट आपको कभी भी गलत राय नहीं देता है. डिसएडवांटेज क्या होता है कि कॉस्ट ज़्यादा लगती है. कॉस्ट क्यों ज़्यादा लगती है, क्योंकि एक्सपर्ट आपने हायर करने हैं वो उनको आपको फ़ीस देनी ही पड़ेगी और टाइम भी लग सकता है. ठीक है, सो दिस इज़ एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, जिसको हम डेल्फी टेक्निक भी कहते हैं. तो डेल्फी टेक्निक में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट स्टेप होता है इसका प्रिपेयर क्वेश्चनेयर फॉर राउंड 1. सबसे पहले आपका जो है मेथड में जो आपका सबसे पहला जो काम होता है कि आप क्या करते हो कि एक्सपर्ट्स के लिए आप क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करते हो, कि क्वेश्चनेयर आप बनाओगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी एक्सपर्ट के पास जा रहे हो तो पहले से ही प्री प्लान्ड होके जाओगे, है ना.
तो प्री प्लान्ड होने के लिए आपको सबसे पहले आपको उनका क्वेश्चनेयर पूरा बनाना पड़ेगा। उन क्वेश्चनेयर को आप जब भी वो आप उनके साथ राय बैठोगे या इंटरव्यू उनके साथ कंडक्ट करोगे तो आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो उन्हीं के बारे में आंसर देंगे ना। सो यू शुड हैव टू फर्स्ट प्रिपेयर क्वेश्चनेयर फॉर द राउंड 1, देन 2 राउंड होंगे इसके, राउंड 1 एंड राउंड 2, ठीक है। सेकेंड क्या चीज़ होगा, सिलेक्ट रिस्पोंडेंट बेस्ड ऑन क्लियरिफाई द डिफाइंड क्राइटेरिया। अब सेकेंड काम क्या है, क्वेश्चनेयर आपने बना लिया है, अब आपने एक्सपर्ट सेलेक्ट करने हैं कि आप किन रिस्पोंडेंट को आप लेके चलोगे और जिनसे आपने राय लेनी है। मार्केट के एक्सपर्ट बहुत सारे हो सकते हैं, आप कितने एक्सपर्ट और कौन कौन से एक्सपर्ट्स को आप लेके चल रहे हो अपने क्वेश्चनर राउंड के लिए, वो आपने एक लिस्ट प्रिपेयर्ड अब करनी है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप आ जाता है, इनवाइट पार्टिसिपेंट्स फॉर द डेल्फी एंड सेंड आउट द क्वेश्चनर एंड कलेक्ट द रिस्पॉन्स फॉर द राउंड फर्स्ट। अब आप उनको इन्वाइट करोगे अपने डेल्फी टेक्निक के लिए, ओपिनियन के लिए। डेल्फी टेक्निक को एक्सपर्ट ओपिनियन टेक्निक कहते हैं, ठीक है। आप उनको इनवाइट करोगे, ज़रूरी नहीं आपने जो सिलेक्ट किए वो सारे के सारे मान जाए आपके प्रोडक्ट के बारे में ओपिनियन देने के लिए, ठीक है। कई बार जो भी है कमीशन से रिलेटेड बाइस हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, ठीक है, बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं। तो जो भी आपके एक्सपर्ट्स हैं आप उनको पहले इनवाइट करोगे, पहले आपने क्वेश्चनर बनाया, उसके बाद आपने सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद आप उनको अब इनवाइट करोगे कि आप मेरे प्रोडक्ट के बारे में आप ओपिनियन दीजिए। जो आएंगे फिर उनको आप क्वेश्चनर सेंड करोगे और उनका जो भी रिस्पॉन्स होगा उनको आप जो है एक स्टोर करके रखोगे, रिकॉर्ड करके रखोगे, ठीक है। देन उसके बाद फोर्थ स्टेप आ जाता है आपका, एनालिसिस द रिस्पॉन्स एंड प्रोवाइड फीडबैक टू द पार्टिसिपेंट। अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा, अब आपके पास जो भी रिस्पॉन्स आया उनको आप एनालाइज करोगे और जो भी फीडबैक आप एक कलेक्ट करोगे, कंक्लूड करके चलोगे कि भाई पार्टिसिपेंट्स का जो है फीडबैक कैसा रहा है। उसके बाद आप फिर से क्या करोगे, रिवर्स में चलोगे। 4 स्टेप्स करने के बाद 5th स्टेप में आप फिर से रिवर्स चले जाओगे। रिवर्स क्या होगा, आप सेकेंड राउंड के लिए अब क्वेश्चनर बनाओगे। सेकेंड राउंड के लिए आपने जो क्वेश्चन पूछे हैं अगर उनमें आपको अच्छा रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है तो आप सेकेंड राउंड प्रिपेयर करोगे। सेकेंड राउंड के लिए आप फर्दर और क्वेश्चंस पूछोगे, आप उन्हीं एक्सपर्ट से आप फर्दर और क्वेश्चंस आप भेजोगे और तो फिर उसके बाद अगले स्टेप में आप उनको एनालाइज करोगे रिस्पॉन्स को, कि वो आपका रिस्पॉन्स किस तरीके से दे रहे हैं, उनको आप एनालाइज करोगे और उनका फीडबैक अगेन लोगे। उसके बाद लास्ट स्टेप में क्या होता है कि कंटिन्यू स्टेप 5th एंड 6th टिल कंसेंसस इज रीच्ड। अब आपका जो 5th स्टेप है ये 6th स्टेप है, इनको आप दोबारा से रिपीट करते रहो। कब तक, जब तक आपकी तसल्ली नहीं हो जाती है कि आपकी फॉरकास्ट एक्चुअल आ गई है। तो डेल्फी टेक्निक में हमने क्या डिस्कस किया हुआ है कि आप एक्सपर्ट का ओपिनियन लेते हो, पहले आप क्वेश्चनर बनाओगे, फिर आप पार्टिसिपेंट सेलेक्ट करोगे, फिर आप उनको इनवाइट करके उनको क्वेश्चनर सेंड करोगे, फिर उनके फीडबैक और रिस्पॉन्स को चेक करोगे, फिर आप फीडबैक लोगे। फीडबैक अगर अच्छा नहीं आया है तो आप फिर से सेकेंड राउंड के लिए 2 राउंड तो होने ही होने, तो सेकेंड राउंड के लिए आप क्वेश्चनर बनाओगे। सेकेंड राउंड के क्वेश्चनर को आप फिर से दोबारा से उनको सेंड करोगे और उनका रिकॉर्ड सब जो रिस्पॉन्स है उनको रिकॉर्ड करके चलोगे। फिर उसके बाद तब तक ये जो प्रोसेस है चलता रहेगा जब तक आपको एक एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल जाता है। दिस इज़ कॉल्ड डेल्फी टेक्निक, और जो है हमारी जिसको हम डेल्फी टेक्निक और एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड कहते हैं। ऑब्वियसली पैसा लगाना है हमने, उनको कमीशन देना है प्रोड्यूसर ने, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली एक्यूरेट रिजल्ट ही चाहेगा। भाई दोबारा से सेंड करो जब तक वो मेरे को एक अच्छा फीडबैक नहीं दे देते। अच्छा मीन्स ये नहीं होता है कि आपके प्रोडक्ट के बारे में वो अच्छा बताए, अच्छा रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है वो एक डीप टू मार्केट में जाएं और आपके प्रोडक्ट के बारे में एक्यूरेट रिजल्ट देने की कोशिश करें। ये सारी क्वालिटेटिव बेस्ड टेक्निक्स होती हैं। क्वालिटेटिव बेस्ड टेक्निक्स में सभी में क्या है, ओपिनियन लेना है। कोई भी आप फॉर्मूला यूज़ नहीं करते हो, सॉरी,
आप फॉर्मूला नहीं यूज़ करते हो, कोई भी एक स्पेशल टेक्निक को यूज़ नहीं करते, आप बस एक गेसेस लेते हो, सजेशंस लेते हो, चाहे वो कंज्यूमर का हो, चाहे वो सेल्स फोर्स का हो, चाहे वो आपके एक्सपर्ट्स का हो। बहुत ही कॉस्टली मेथड होता है। इन तीनों मेथड में सबसे ज़्यादा कॉस्टली मेथड आपका जो है एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड ही होता है। बट अगर एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी भी आपको एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड के थ्रू ही मिलेगी। इसको डेल्फी मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट माई टूडेज लेक्चर। इन माई दिस लेक्चर आई हैव completed all the topics of opinion polling method and or qualitative methods. ठीक है, प्लीज गो थ्रू दिस मेथड. नो फॉर्मूला इज नीडेड इन this methods, but in our next video we are going to discuss the statistical techniques one by one, because in this techniques we are going to use somewhat formulas. With the help of example we will discuss all these things. ठीक है, so thank you so much.